Hello everyone, welcome to my channel Numeric Marathon. In the previous video, we have discussed what is Cartesian product and we have done some examples related to Cartesian product. In today's video, we are going to start with exercise 2.1. So question number 1 says, if x upon 3 plus 1 comma y minus 2 upon 3, this is an ordered pair given to us. This is an ordered pair given to us and it is equal to the ordered pair 5 upon 3 comma 1 upon 3. फाइन सो अब हमें ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल गिवन है वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यूज फॉर एक्स एंड वाई ओके सो अब हमें क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल गिवन है दैट मींस फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर विल बी इक्वल एंड सेकंड एलिमेंट्स ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर विल बी इक्वल सो वी कैन हैव x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 एंड y minus 2 upon 3 is equal to 1 upon 3. So I can solve for x from this particular equation and I can solve for y from this particular equation. So if I start solving for x, now we have x upon 3. I'm shifting 1 to RHS. This becomes is equal to 5 upon 3 minus 1. X upon 3 is equal to 5 minus 3 upon 3, which is equal to 2 upon 3. Now x is equal to 2 upon 3 into 3. 3 and 3 gets cancelled. X is equal to 2. Similarly, we can solve for y. Y is equal to 1 plus 3, 1 upon 3 plus 2 upon 3. This becomes y is equal to 3 upon 3, which is equal to 1. So y is equal to 1. Now x is equal to 2 and y is equal to 1. These are the two values that we have evaluated from the given condition in the question. Fine. Now we have question number 2. It says if the set A has 3 elements, that means cardinality of set A is given to us, n of A is given to us as 3. Also it says the set B is equal to 3, 4, 5. We are supposed to find out the number of elements in set A cross B. So we are supposed to find out cardinality of A cross B. Fine. Now the formula for finding the cardinality of A cross B is cardinality of the sets given to us, the product of their cardinality. So cardinality of A into cardinality of B. हमें यहाँ पर B में कितने elements given है? 3 elements are there in set B. So cardinality of B is also equal to 3. So cardinality of A cross B is equal to cardinality of A into cardinality of B. So यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? Cardinality of A is 3. Cardinality of B is again 3. Product of 3 and 3 is 9. So there will be 9 elements in A cross B. Cardinality of A cross B will be 9. Okay. Now we have question number 3. It says if G is equal to the set which is having elements as 7, 8 and H has elements 5, 3, 2. We are supposed to find out G cross H and H cross G. So जब हम G cross H निकालेंगे that means ordered pair में फर्स्ट वाले एलिमेंट्स हमारे कौन से सेट से होंगे? G से एंड सेकेंड एलिमेंट्स कौन से सेट से होंगे? H से. सो पहले हम इसका जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं, जनरल फॉर्म लिख देते हैं G क्रॉस H की. G क्रॉस H हमारा कैसे हो जाएगा? G cross H will have elements small g comma small h such that small g belongs to the capital set this set G, small g belongs to set G and the element h belongs to the set H. Fine. So G cross H मेरे कैसे हो जाएंगे? हमें G के सारे एलिमेंट्स को पहले H के सारे एलिमेंट्स के साथ लिंक करना है. दैट मीन्स 7, 5, 7, 4, 7, 2. Then we have 8, 5, 8, 4 and 8, 2. ये मेरा बन गया G क्रॉस H. हमारे पास पहले G था, दैट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स मेरे सेट G के हैं. ओके. नाउ आई एम इवेल्युएटिंग H क्रॉस G. H क्रॉस G में क्या हो जाएगा? मेरे पहले एलिमेंट्स जो हो जाएंगे ऑर्डर्ड सेट के, ऑर्डर्ड पेयर के जो पहले एलिमेंट हो जाएंगे वो हो जाएंगे H से. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू रिलेट H टू G. Okay, we are going to relate H to G. So ordered pair मेरे कैसे बनेंगे? 5, 7, 5, 8, 4, 7, 4, 8, 2, 7, 2, 8. ये मेरा बन गया H cross G. Now we have question number 4. It says state whether each of the following statements are true or false
If the statement is false, rewrite the given statement correctly. Fine. So the first part that is given to you is if p is equal to m comma n and q is equal to n comma m. आपको सेट p दे रखा है और सेट q दे रखा है. Then p cross q is equal to m n and n m. ये अब आप ये देखिए कि p की कार्डिनलिटी कितनी है 2, q की कार्डिनलिटी कितनी है 2. सो p क्रॉस q की कार्डिनलिटी हमारी एक्चुअली होनी कितनी चाहिए? कार्डिनलिटी ऑफ p क्रॉस q शुड बी इक्वल टू 4, but here it is equal to 2, so that means this is false, right? That means this is false. So हम स्टेटमेंट 1 को करेक्ट करके कैसे लिख सकते हैं? हम p क्रॉस q के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं पहले तो. सो हमारे p क्रॉस q के एलिमेंट्स कैसे आएंगे? पहला एलिमेंट हमारा ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो p से आएगा, ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट जो होगा वो q से आएगा. सो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? m comma n, I am relating all the elements of p to q. So m comma n, उसके बाद में क्या लिख सकती हूँ? m comma m. उसके बाद में क्या लिख सकती हूँ? n comma n. And lastly I'll have n comma m. Fine. अब ये जो मेरा p क्रॉस q सेट बनकर आया है, दिस इज माय एग्जैक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ p एंड q. अब आप ये देख लीजिए इसकी कार्डिनलिटी हमारे पास कितनी निकल कर आ रही है? 4. 4 क्यों निकल कर आ रही है हमारे पास कार्डिनलिटी? बिकॉज कार्डिनलिटी ऑफ p इंटू कार्डिनलिटी ऑफ q विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2, और ये जो आनी चाहिए 4 आनी चाहिए. नाउ वी हैव करेक्टेड आवर स्टेटमेंट 1. फाइन. स्टेटमेंट 2. अब स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? इफ a एंड b आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, then a cross b is also non-empty. It is a set of ordered pairs x comma y such that x belongs to a and y belongs to b. So this is absolutely true. ये हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है. So this is absolutely true. Then we have third part. If a is equal to the set given to you 1 comma 2 and b is equal to 3 comma 4, they are asking a cross b intersection phi जो होगा क्या वो phi आएगा या नहीं आएगा? तो ऑब्वियसली b इंटरसेक्शन फाई मतलब b के साथ अगर हम किसी भी सेट का सॉरी एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन अगर हम लेते हैं किसी भी सेट के साथ, तो वो क्या निकल कर आता है? एम्प्टी सेट में और इस b में तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं निकल कर आएगा. तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ? a क्रॉस फाई, क्योंकि इंटरसेक्शन मेरा फिर से फाई निकल कर आएगा. अब एम्प्टी सेट के साथ अगर मैं किसी भी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लूंगी, सो आई विल गेट फाई इटसेल्फ, क्योंकि एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो बन ही नहीं पाएंगे हमारे. दिस मीन्स जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल कर आएगा वो भी हमारा फाई ही निकल कर आएगा. सो दिस इज अगेन ट्रू. ओके. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5. इट सेज इफ a इज इक्वल टू -1 comma 1 फाइंड a क्रॉस a क्रॉस a. तो a क्रॉस a क्रॉस a, अब हमें 3 सेट्स दे रखे हैं यहाँ पे. सो 3 सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट्स. सो ये कैसे निकल कर आएगा हमारे पास? a comma a such that a belongs to a. ओके. ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसा निकल कर आएगा. फाइन. सो अब हम इसको लिखना शुरू करते हैं. पहले हम लोग सिर्फ a क्रॉस a निकाल लेते हैं सो दैट इट बिकम्स लिटिल बिट इजी. सो -1 into 1 सॉरी -1 comma 1 क्रॉस -1 comma 1, ये कितना बन जाएगा मेरा? सो अब -1 पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट्स को दूसरे वाले सेट के एलिमेंट से हम लिंक करेंगे. सो दिस विल बी -1 comma -1 -1 comma 1, देन वी हैव 1 comma -1 एंड 1 comma 1. ये मेरा a क्रॉस a निकल कर आ गया है. अब अगर मुझे a क्रॉस a निकालना है, दैट मीन्स -1 comma -1 -1 comma 1 1 comma -1 1 comma 1. इस सेट का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है मुझे, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है मुझे -1 comma 1 के साथ. दैट मीन्स दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट. हर एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ लिंक करना है. फाइन. तो ये मेरा सेट कैसा बनकर आ जाएगा? -1 comma -1 comma -1, देन आई हैव -1 comma -1 comma 1. अब हमें फर्स्ट एलिमेंट को ही सारे एलिमेंट्स के साथ लिंक करना है पहले सेट दूसरे वाले सेट के. सो +1 comma -1 comma -1,
देन आई हैव 1, 1, -1। अब हम दूसरे वाले एलिमेंट को लेके चलेंगे। सो -1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, एंड देन वी हैव 1, 1, 1। ये मेरा बन गया है A क्रॉस A क्रॉस A। फाइन, वेरी इजी। पहले हमने दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, उसके बाद हमने उसी सेट का तीसरे सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दिया। सो ऐसे हम वी कैन टेक आउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर सेट्स। और ये हमारे कैसे एलिमेंट्स हैं? दे आर ऑन द फॉर्म ट्रिपलेट्स। फाइन, okay, now we have question number 6. It says if A cross B is equal to A comma X, A comma Y, B comma X, B comma Y, that means ये हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है A क्रॉस B का। ठीक है, तो सेट A में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? सेट A में एलिमेंट्स आएंगे ऑर्डर्ड पेयर के पहले वाले एलिमेंट्स, दैट मीन्स A कॉमा अब A A B B। सो ऑब्वियसली हम रिपीट नहीं करेंगे, दैट मीन्स A कॉमा B विल बी द एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड सेट बी के एलिमेंट्स हमारे क्या बन जाएंगे? ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड वाले एलिमेंट्स। सो एक्स कॉमा वाई, दैट मीन्स एक्स एंड वाई। ठीक है, ये हमारे बन गए हैं सेट के एलिमेंट्स। हम इस चीज को नोट कर लेते हैं ताकि हम इसे भूले ना। ए में हमारे कौन से एलिमेंट्स आए हैं? फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। एंड सेट बी में कौन से एलिमेंट्स आए हैं? सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ये हमारा सेट ए और बी बन गया है यहाँ पर। So now we have question number 7. It says let A is equal to set 1, 2, B is equal to 1, 2, 3, 4, C is equal to 5, 6, and set D is equal to 5, 6, 7, 8. We have to verify. In the first statement it is written that verify A cross B intersection C is equal to A cross B intersection A cross C. Fine. So for this first we need to evaluate what is B intersection C. So B intersection C हम लिखेंगे पहले कितना है हमारे पास, that means common elements of B and C. So common elements of B and C are, B intersection कितना आ जाएगा हमारे पास? Is there any element common? 1, 2, 3, 4, 5 and 6, there is no element common, right? So B intersection C will be 5. Now A cross B intersection C. That means instead of B intersection C, we can substitute 5 now. So A cross 5 will be 5. अगर हम एम्प्टी सेट के साथ किसी भी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो 5 ही आएगा, क्योंकि 5 में तो हमारे कोई एलिमेंट्स ही नहीं है। फाइन, तो प्रोडक्ट भी कितना आएगा? 5, एम्प्टी सेट। ओके, नाउ आई एम मार्किंग दिस एज माय स्टेटमेंट 1. नाउ दे से we have to evaluate in the RHS A cross B. So first let us evaluate what is A cross B. A cross B means सेट A के सारे फर्स्ट एलिमेंट्स को सेट B के सभी एलिमेंट्स के साथ लिंक करेंगे, right? So in set A we have 1 and 2. So our ordered pair will be of the form 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Now we'll take 2 from set A, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. So ये हमारा बन गया A क्रॉस B. फाइन, अब हम क्या निकालेंगे? A क्रॉस C. दैट मीन्स A के सभी एलिमेंट्स को C के सभी एलिमेंट्स के साथ लिंक करेंगे. So we'll have 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6. अब हमें इसमें देखना है A क्रॉस B और A क्रॉस C में हमें ये देखना है कि क्या कोई हमारा ऑर्डर्ड पेयर कॉमन आ रहा है दोनों में से निकल के. Can we have any common ordered pair in A cross B and A cross C? No, there is no common ordered pair in A cross B and A cross C. So इन दोनों ही सेट का इंटरसेक्शन मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा? 5. So A cross B intersection A cross C will be 5. So अगर मैं इसको स्टेटमेंट 2 लिख देती हूँ, so now I have 1 is equal to 2. फर्स्ट वाले का भी मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 निकल कर आया. A क्रॉस B और A क्रॉस C का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 निकल कर आया. So LHS is equal to RHS. Hence proved.
Fine. Now the part 2 of question number 7. In part 2, they say that we have to show A cross C is a subset of B cross D. Fine. So first let us evaluate what is A cross C. A cross C we have already evaluated in our part 1. So A cross C becomes 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6. This is our A cross C. Fine. Now let us evaluate what is B cross D. That means all the elements of B will be linked with all the elements of D. So let us start. We'll have 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8. Then we have 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8. Similarly, we'll take 3 now. 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8, 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4, 8. ये हमारा निकल कर आ गया हमारे पास B क्रॉस D. अब आप ये देखिए कि A क्रॉस C के जो ऑर्डर्ड पेयर है 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6, ये हमारे B क्रॉस D में भी लाई कर रहे हैं. We have 1, 5 here, we have 1, 6, then we have 2, 5 and 2, 6. So since all the elements of A cross C are lying in B cross D, therefore since all the ordered pairs of A cross C belong to B cross D also, therefore we can say that A cross C is a subset of B cross D. Fine. A cross C के सभी ordered pair जो हैं वो B cross D में lie कर रहे हैं, therefore we can say that A cross C is a subset of B cross D. So now we have question number 8. It says A is equal to 1, 2, B is equal to set 3, 4. So write A cross B. So पहले हम A cross B निकाल लेते हैं. कितना आएगा हमारा? A cross B is equal to, now all the elements of set A will be linked to all the elements of set B. Ordered pair में हमारा ordered pair का पहला element कौन से set से आएगा? Set A से. Fine. So we'll have 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. Fine. So these are my elements of A cross B. Now it says how many subsets will A cross B have. So अगर हमारा कोई भी set है A, for example A has any elements 1, 2, 3, ठीक है, तो A की कार्डिनलिटी कितनी हो गई? A की कार्डिनलिटी हमारे पास 3 आ गई. तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A, हमारे पास कितना आ जाता है? हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, is equal to 2 to the power cardinality of A. That means 2 to the power 3, that is 8. Number of subsets कितने निकल कर आएंगे? A के 8. Similarly हमारे पास A क्रॉस B की कार्डिनलिटी कितनी है? A क्रॉस B की कार्डिनलिटी हमारे पास कितनी आ गई? 4. So number of subsets of A क्रॉस B, A क्रॉस B के number of subsets कितने होंगे? 2 to the power n of A क्रॉस B. 2 to the power n of A cross B. ये कितना निकल कर आ जाएगा हमारे पास? 2 to the power 4. That means how many elements will be there? 16 elements will be there. 16 subsets will be there. A cross B के 16 subsets निकल कर आएंगे. Fine. Now we have to list those subsets. So subsets of A cross B. So now we are going to write the subsets. So अब हम एक एक ऑर्डर्ड पेयर को उठा के अगर हम सेट में डाल देंगे, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर हमारा एक एलिमेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, हम सबसेट निकालते वक्त क्या करते हैं? हर एक एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में डाल के उसको एक सबसेट बना देते हैं. तो सिमिलरली हर एक ऑर्डर्ड पेयर को अगर हम एक एक बार उठा के कर्ली ब्रैकेट्स में डालेंगे तो वो भी सबसेट बन जाएगा हमारा. सो हमारे फर्स्ट 4 सबसेट्स क्या आ जाएंगे? 1, 3, 1, 4, then we have 2, 3, then we have 2, 4. फाइन. अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम दो दो ऑर्डर्ड पेयर को उठा के साथ में लिख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट्स में. फाइन. सो हमें दो दो के कॉम्बिनेशन को उठा के लिखेंगे. दैट मीन्स 1, 3, 1, 4. सेकेंड कैन बी 1, 3,
2 comma 3. Then we can have 1 comma 3, 2 comma 4, right? Similarly, we can have 1 comma 4, 2 comma 3. Then we can have 1 comma 4, 2 comma 4, right? And we can also have 2 comma 3 and 2 comma 4. फाइन, ये हमने दो दो ऑर्डर्ड पेयर को उठा के उनका कॉम्बिनेशन बना के रख दिया है. नाउ वी कैन टेक अप थ्री ऑर्डर्ड पेयर्स एट अ टाइम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. वी कैन हैव 1 comma 3, 1 comma 4, 2 comma 3. Then we can have 1 comma 4, 2 comma 3, 2 comma 4. Yes. Then we can have 1 comma, sorry, we can have 2 comma 3, 2 comma 4, 1 comma 3. Also we can have 2 comma 4, 1 comma 3 and 1 comma 4. Fine. We also know phi is the subset of every set. तो phi हमारा एक subset आ जाएगा. And this set itself, A cross B itself will be a subset. So we can write the entire A cross B. So 1 comma 3, 1 comma 3, 1 comma 4, 2 comma 3, 2 comma 4. अब हम काउंट कर लेते हैं हमारे कितने सबसेट्स बने हैं. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. So in this way we complete all the 16 subsets of A cross B. So now we have question number 9. It says let A and B be two sets such that cardinality of A is 3 and cardinality of B is 2. So let's write down what is given in the question. Cardinality of A is given as 3 and cardinality of B is given as 2. Now it is given that x comma 1 comma y comma 2 and z comma 1, they belong to A cross B. Fine, they belong to A cross B. तो मेरे सेट A में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ A क्रॉस B. फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ A क्रॉस B. सिमिलरली सेट B में मेरे क्या एलिमेंट्स आएंगे? सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ A क्रॉस B. ऑर्डर्ड पेयर ऑफ A क्रॉस B. फाइन. सो अब इसमें फर्स्ट एलिमेंट कौन से हैं हमारे? x, y, z. सो यहाँ से हमें क्या पता चलता है? देयरफॉर x, y, z जो होगा ये सारे के सारे हमारे कहाँ बिलोंग कर जाएंगे? A में. ऑल दीज एलिमेंट्स विल बिलोंग टू A. ठीक है. Why? Because they are the first elements of the ordered pairs. So x, y, z belong to A. Obviously और हमें क्या दे रखा है? n of A is also equal to 3. सो ये जो हम निकाल कर लाए हैं कि x, y, z जो होगा वो A में बिलोंग करेगा, दिस इज करेक्ट. फाइन. सिमिलरली व्हाट डू वी हैव इन एज द एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, एज द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर? हमारे सेकंड एलिमेंट्स क्या है? 1, 2. दोबारा भी 1 आ रहा है तो हम रिपीट नहीं करेंगे. ठीक है. तो 1, 2 मेरे किस में बिलोंग कर जाएंगे? सेट B में. ठीक है. ऑल्सो n ऑफ B इज गिवन टू अस एज 2. सो ये जो हम निकाल कर लाए हैं ये भी हमारा गिवन कंडीशन के हिसाब से इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो सेट A becomes x, y, z. Similarly set B becomes 1, 2. Fine. Now we have question number 10. It says the Cartesian product of A cross A has 9 elements. So cardinality of A cross A हमें given है 9. ठीक है. Among which are found -1, 0 and 0, 1. अब -1, 0 और 0, 1 जो है ये हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं A क्रॉस A के. So -1, 0 belongs to A cross A. Similarly we have 0, 1 also belonging to A cross A. This is all given in the question. Fine. They are asking us to find the set A and the remaining elements of A cross A. ठीक है. So अब यहाँ देखिए कि हमें n of A cross A कितना दे रखा है? 9. ठीक है. n of A cross A means n of A into n of B, sorry n of A. तो मेरे पास क्या कॉम्बिनेशन निकल कर आ सकता है? किसी भी दो नंबर्स का उनका प्रोडक्ट 9 हो जाए. दैट मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ A कितना हो सकता है? 3.
ऑब्वियसली 3 into 3 करेंगे तभी हमारे पास 9 आएगा. सो वी आर ओनली लेफ्ट विद वन पॉसिबिलिटी दैट कार्डिनलिटी ऑफ ए विल बी 3. ये तो हमने निकाल दिया कि कार्डिनलिटी ऑफ ए विल बी 3. अब आप ये देखिए कि ए क्रॉस ए में मेरे एलिमेंट्स कैसे होंगे. ए क्रॉस ए में मेरे एलिमेंट्स कैसे सबसे आएंगे. इट विल बी ऑफ द फ्रॉम ए क्रॉस ए सच दैट ए बिलोंग्स स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए. हमारे ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स कैसे होंगे. ए कॉमा ए, ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर होगा. ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए. ठीक है. सो अब आप ये देखिए कि ये जो हमें दो ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ कि -1, 0 एंड +1, ऑल दीज एलिमेंट्स विल बिलोंग टू ए. ठीक है. क्यों? क्योंकि हमारा जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये ए से ए में ही है. इट इज फ्रॉम ए क्रॉस ए. इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट एलिमेंट भी ए में बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट भी ए में बिलोंग करेगा. दैट मींस -1 विल आल्सो बिलोंग टू ए, 0 विल आल्सो बिलोंग टू ए एंड +1 विल आल्सो बिलोंग टू ए. ठीक है. अब और हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में कि कार्डिनलिटी ऑफ, सॉरी हमने क्या निकाल लिया, कार्डिनलिटी ऑफ ए हमने 3 निकाल लिया. दैट मींस ये जो हम एलिमेंट्स निकाल कर लाए हैं ए के, दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट. सो हमारा सेट क्या बन गया, -1, 0, 1. अब इन्होंने बोला है राइट द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए. सो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे ए क्रॉस ए के. पहले तो वही लिख लेते हैं जो हमें गिवन है. वी हैव -1, 0 and we have 0, 1. Now we can write the remaining elements. It will be -1, -1. Then we have -1, +1. Then we can have 0, -1, 0, -1, and we can have 1, -1. We can also have 1, 0. Then we'll have 1, 1. ये हमारे एलिमेंट्स आ गए हैं ए क्रॉस ए के. फाइन. सो हमने क्या करा है इस क्वेश्चन में, हमें ए क्रॉस ए की कार्डिनलिटी दी हुई थी 9, वहां से हमने सेट ए की कार्डिनलिटी निकाली. हमें ये भी गिवन है कि -1, 0 और 0, 1 जो है वो ए क्रॉस ए में बिलोंग कर रहा है. दैट मींस फर्स्ट एलिमेंट विल आल्सो बिलोंग टू सेट ए, सेकंड एलिमेंट विल आल्सो बिलोंग टू सेट ए. फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर विल बिलोंग टू सेट ए. इसका मतलब क्या हुआ कि -1, 0 एंड +1 तीनों ही एलिमेंट्स जो होंगे मेरे सेट ए में कंटेन करेंगे. और ये मैं कैसे शो कर सकती हूँ, मतलब ये मैं कैसे जस्टिफाई कर सकती हूँ, क्योंकि कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी निकल कर आई है 3. सो ए में कितने एलिमेंट्स आएंगे, मेरे 3 एलिमेंट्स आएंगे, -1, 0, 1. फाइन. उसके बाद हमसे क्वेश्चन में क्या मांगा था, वी आर सपोज टू राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, जो कि हमने यहाँ मेंशन कर दिए हैं. आप ये देखिए कि ए क्रॉस ए में हमारे 9 एलिमेंट्स आने चाहिए. हम लोग काउंट कर लेते हैं. सो वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. मतलब क्या हुआ, हमने जरूर एक एलिमेंट छोड़ दिया है, एक ऑर्डर्ड पेयर छोड़ दिया है. तो हम क्या लिख सकते हैं, हम 0, 0 भी लिख सकते हैं. हमने 0, 0 मिस कर दिया. 0, 0 लिखेंगे तब हमारे 9 एलिमेंट्स पूरे आएंगे. सो एक बार हमें जरूर चेक कर लेना चाहिए कि जितना हमारा कार्डिनलिटी आ रहा है उतने हमारे एलिमेंट्स बने हैं ऑर्डर्ड पेयर में या नहीं बने. फाइन. सो इट इज बेटर टू क्रॉस चेक योर आंसर फ्रॉम द कार्डिनलिटी दैट इज गिवन टू यू. अभी हमारा एक एलिमेंट मिस हो गया था, हमने लिख दिया, नॉट अ बिग डील. ठीक है. सो बेसिकली आपको क्या करना है, जो भी कार्डिनलिटी क्वेश्चन में गिवन है और जो आपने सेट बनाया है, एक बार उसको टैली कर लीजिए. एक बार उन एलिमेंट्स को टैली कर लीजिए कि मेरे 9 एलिमेंट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं. क्योंकि अगर जैसे अभी हमारा एक एलिमेंट मिस हो गया तो हमें पता चल गया कि हमारे को एक और एलिमेंट लिखना है, और वो भी हमें पता चल गया कि वो एलिमेंट कौन सा होगा, 0, 0. क्योंकि ऑब्वियसली दिस 0 विल बी रिलेटेड टू इटसेल्फ आल्सो. सो द 9th एलिमेंट ऑफ A cross A will be 0, 0.